Hi, namaskar to all of you people here. I'm just here to share a little bit about something that I learned in my journey. I started my career back in 2005 as a music composer with Zeher. Wo Lamhe Wo Baatein was my first song, and my last release has been Gadar 2. It's been a beautiful journey of 18 years, and there's something very important जो मैंने सीखा as an artist, as a human being, and as a voice in my journey, which I think could maybe bless you today. So that is the intention why I'm here and nothing else. देखिए, जब मैंने अपने काम की शुरुआत की, when I started learning at the age of 11, and by the time I was 16, I decided कि I want to be a Hindi film music composer. And उसके बाद मेरे जहन में एक as I trained under my gurus, I trained under my father and all the people who inspired me, my childhood heroes. I got some time to spend with different legends at different stages in my life. लेकिन जब मैंने जहर का म्यूज़िक जब किया, मैं 19 साल का था उस टाइम पे. अहम बात ये है, द इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ दैट मुझे लगता है कि जो चीज़ मेरे लिए वर्क की है वो ये है कि I always had a point of view. I always had a thought. I always had a particular voice, as I have titled my message today, from abstract to absolute, my voice. मेरे father ने हमेशा मुझे एक बात सिखाई थी कि he used to always tell me कि I can tell you how to say it. You can learn the craft. You can learn this art, but the message always has to come from you. That is what will make you individual, and especially for me, because I come from a gharana of musicians. My grandfather, my tayaji, my father, they're all very acclaimed and highly respected musicians in our country. तो वो बात भी मेरे लिए बहुत अहम थी, क्योंकि मैं अगर वही मैसेज या वही ख्याल या वही थॉट अगर मैं लेकर आता तो शायद मेरा सफ़र यहाँ तक नहीं पहुँच पाता. But what actually, the way I learned it and what worked for me is that I always had a thought process of my own. I always had a conviction. When I did the music for a film called Anwar, there was a song called Maula Mere Maula. And yeah, thank you. I wasn't expecting that. But देखिए, उसमें I made Rup Kumar Rathod sing the song. एंड वो मेरा बहुत ऑनेस्ट जगह से वो थॉट है, बिकॉज आई ऑलवेज हर्ड दैट सॉन्ग इन अ पर्टिकुलर वे इवन बिफोर इट वॉज रिकॉर्डेड. बिफोर दैट आई डिड द म्यूजिक फॉर अ सॉन्ग फॉर अ फिल्म कॉल्ड बस एक पल, जिसमें आई मेड आतिफ असलम सिंग अ सॉन्ग कॉल्ड तेरे बिन. सो व्हाट हैपेंस इज आई ऑलवेज हर्ड माई म्यूजिक इन अ पर्टिकुलर वे. देयर वर सर्टन प्रोग्रेशंस, देयर वर सर्टन ऑराज, देयर आर सर्टन अ साउंडस्केप जो मेरे जहन में हमेशा था, एंड आई ऑलवेज वांटेड टू डू म्यूज़िक इन दैट पर्टिकुलर वे. मैं जब 18-19 साल का भी था, तब भी मेरे जहन में मैं अपने रूम में बैठ के मैं बजाया करता था, और मैं यही सोच रहा था कि मैं अगर आई हैव टू लिसन टू द ग्रेट मास्टर्स, आई हैव टू लिसन टू द ग्रेट हीरोज़ ऑफ म्यूज़िक. बट मैं यही सोचता था कि जब मैं किसी फिल्म में संगीत करूँगा, जब मैं कोई गाना बनाऊँगा, तो मैं इसको इस किस्म से करूँगा. एंड आई ऑलवेज हेल्ड ऑन टू दैट रिजॉल्व. सीखने वाली बात ये थी कि when I did the music for Zeher, when I did the music for Kalyug, Bas Ek Pal, The Train, I sang as well. मुझे लोगों ने बहुत प्यार दिया, and my music instantly connected with the people of our country and all over the world. और मुझे बड़ा I felt very satiated, I felt very humbled as well, and I felt fulfilled कि जो मेरी सोच थी वो लोगों को पसंद आ रही है. लेकिन देखिए, कामयाबी जो होती है वो हमें कम सिखाती है, एंड वी ऑल नो कि समटाइम्स फेलियर टीचेस अस मोर. और एक ऐसा दौर आया आफ्टर माई फर्स्ट स्ट्रिंग ऑफ 5 चार्ट बस्टर एल्बम्स, व्हेन आई फेल्ट दैट I wasn't getting the kind of appreciation that I would have wanted. There was one particular phase in my life around 2008, 3 years into my career, जब मुझे लगा कि when I wasn't seeing the kind of numbers I would want to see, or the kind of play I would see for my songs earlier. एंड उस टाइम पे एक ऐसा दौर आया, आई थिंक 2008 के बाद, जब जो है हिंदी फिल्म का जो हिंदी फिल्म की सोच और उसका साउंड बदलने लगा. एंड देयर वाज सडनली अ लॉट ऑफ डांस म्यूजिक, देयर वाज सडनली अ लॉट ऑफ
डिफरेंट साउंडस्केप्स, EDM उस टाइम पे नया था और बहुत सारे ऐसे अलग अलग बहुत खूबसूरत जॉनर्स जो है इंट्रोड्यूस हो रहे थे और बड़े कामयाब भी हो रहे थे। अभी ऐसे में एक प्रश्न आता है मेरे सामने एज एन आर्टिस्ट कि मैं जिस चीज़ को लेकर बड़ा हुआ हूँ, दैट विच इज़ माई थॉट प्रोसेस, दैट विच इज़ माई रिजॉल्व, उसके ऊपर एक बहुत बड़ा प्रश्न लगता है। और मेरे बहुत सारे वेल विशर्स भी थे जो मेरे आसपास थे, जो मेरा भलाई चाहते थे, वो भी मुझे कहते थे कि नहीं मिथुन, हमें लगता है कि अभी जो है वो साउंड या वो सोच अभी आपकी वर्क नहीं करेगी, अभी आपको कुछ शायद आपको कुछ और करना चाहिए। कुछ और करने में बुराई नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि कुछ और तब करना चाहिए जब बाहर से नहीं, आपके अंदर से आवाज़ आए। एंड मेरे अंदर में आवाज़ आ रही थी कि नहीं, मैं अभी भी एक साउंडस्केप को एक्सप्लोर करना चाहता हूँ जो 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 जिससे मुझे शांति मिलती है, विच मेक्स मी फील मोर एट पीस अबाउट माई सेल्फ एज एन आर्टिस्ट एंड एज अ ह्यूमन बींग, एंड आई विल होल्ड ऑन टू दैट. And even in that lull period of a couple of years, while when I felt I need to take a break, I need to pause, I need to reflect and hold on to what my initial calling was as an artist, what my soundscape was, I wanted to write songs of those sort, and I wanted to be that composer. बहुत माहौल मेरे विपरीत होने के बावजूद मैं अपने सोच, अपने विचारों के ऊपर और अपने उस रिजॉल्व के ऊपर अड़ा रहा. और सच जानिए, अगर मैं उस टाइम पे उस विचार को छोड़ देता तो आप लोग कभी आशिकी 2 का संगीत सुन नहीं पाते. What was important for me at that point of time was to hold on to who I am and what is coming from from inside. And then I first did the music of Murder 2. I did Dil Sambal Ja Zara, followed by Jism 2, and then finally Aashiki 2 happened, and then there was this complete revolution that actually the entire fraternity and the entire soundscape changed because of some songs that I did. And I'm glad that I could inspire a string of artists and a new generation who are exploring that soundscape even till today. तो ये कहने का मेरा तात्पर्य ये है, मुझे लगता है कि हर व्यक्ति जो है अपने आप में यूनिक है. हर व्यक्ति जो है अपने आप में एक ऐसा कंटेंट रखता है जो उसको बहुत वैल्यूएबल करता है. एंड दैट कंटेंट इज समथिंग दैट इज विद इन यू, दैट इज समथिंग दैट हैज़ बीन गिवन टू यू, जो आपको परमेश्वर ने आपके भीतर दिया है. इट कुड बी एनीथिंग. इट्स ऑल अबाउट यू आर द मोस्ट वैल्यूएबल एसेट दैट यू हैव राइट नाउ. इट इज़ योर थॉट प्रोसेस, इट इज़ योर विजन. और ख़ास तौर से आज के समाज में अगर हम देखेंगे, बिकॉज देर इज सो मच ऑफ इंफॉर्मेशन अवेलेबल ऑल अराउंड अस, there is so much of grooming all around us, there is so many opinions around us, कितना सारा ज्ञान हमारे आसपास है जो बहुत अच्छी बात है. लेकिन मैं अपने आप से और आज शायद आप सबसे ये प्रश्न करना चाहता हूँ कि ये जो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, क्या ये कहीं हमारे अंदर की आवाज़ को तो नहीं छुपा रहा है? इज देयर समथिंग इनसाइड यू दैट यू वांट टू डू which is getting maybe overshadowed, maybe which is getting silenced because of the noise in the world today? And I think that will be a very big loss to me or to any one of us, अगर हम हमारे अंदर जो चीज़ बहुत अद्भुत है, जो बहुत यूनिक है, अगर हम उसको खो दें. मुझे लगता है कि हर व्यक्ति अपने तरीके से यूनिक होता है. इट कुड बी एनीथिंग. इट कुड बी योर वैल्यूज़, इट कुड बी द वे यू बीन ब्रॉट अप, इट कुड बी समथिंग दैट योर मॉम टॉट यू. ऐसा कुछ होगा जो आपके गुरु ने आपको सिखाया, समथिंग विच जस्ट मेक्स यू डिफरेंट. मुझे लगता है कि दुनिया के शोर में, इन द नॉइज ऑफ द वर्ल्ड एंड देयर सो मच ऑफ इंफॉर्मेशन अवेलेबल टुडे, मतलब अब इन द ईरा ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, देयर इज जस्ट इंफॉर्मेशन जस्ट एट द क्लिक ऑफ योर फिंगर टिप्स. बट जो प्रश्न मैं आज उठाना चाहता हूँ, व्हाट आई वांट टू आस्क माई सेल्फ एंड आई वांट टू आस्क ऑल ऑफ यू इज दैट डू वी नीड टू बी अ लिटिल केयरफुल दैट ये चीज़ें जो है जीवन बेहतर करने के लिए है, उसको और सराहने के लिए है. इट्स टू मेक थिंग्स बेटर, बट मे बी द रियल वेल्थ इज वॉट इज देयर विद इन अस. एंड समटाइम्स in an environment like this, in pure pressure, in so many opinions, that individuality does tend to get lost, and I think that will be a very big loss for me or for you if we let go of it. There is always something within you which it could be a thought, it could be an idea, it could be something which makes you unique. और मुझे लगता है आज के दुनिया में वो चीज़ जो है वैल्यू खोती जा रही है. एक्सटर्नल थिंग्स गेट अ लॉट ऑफ वैल्यू. अगर आज आप कुछ पहन के जाते हो
या आज एक रैंडम एग्जाम्पल मैं आपको दूंगा कि प्रश्न बहुत आसानी से ये बनता है कि विच ब्रांड इज दिस, व्हाट आर यू वेयरिंग, व्हाट ब्रांड इज दिस, और व्हाट इफ आई एम म्यूजिशियन आई प्ले कीज, राइट? तो अगर कोई बहुत सुंदर चीज़ मैं बजाता हूँ, सो आई गिव यू एन एग्जाम्पल, आई प्ले समथिंग. So I'll just play the melody that we just heard, right? So it goes as now when I play something like this, a normal question would be that sounds really good, maybe from an average perspective, ki what keyboard was that? But believe me, the keyboard comes second. What you heard is not a brand, it's not the instrument. What you heard is Mithun. And that's the point I'm trying to make. जब मैं सीख रहा था, मेरे गुरु जो मुझे पियानो सिखाते थे, मिस्टर टोनी पिंटो, वो मुझे कहा करते थे कि कभी भी है, कोई भी इंस्ट्रूमेंट हो, कोई भी पियानो हो, आपका सस्टेन पेडल हो या नहीं हो, आपको सही रिवर्ब मिले या नहीं मिले, सही माइक मिले या नहीं मिले, अगर आपका कंटेंट सुंदर है तो हमेशा सुंदर ही सुनाई देगा. सो दैट्स व्हाट आई वांट टू गेट बैक टू, कि देयर इज समथिंग दैट इज स्पेशल अबाउट यू, देयर इज समथिंग यूनिक अबाउट यू एज अ पर्सन. आप किसी भी क्षेत्र में काम करते हो, आप कोई भी आपका वोकेशन हो, कोई भी आपकी बुलाहट हो, आपके भीतर जो आवाज़ है, नेवर लेट दैट गो साइलेंट. एंड स्पेशली इन टुडेज टाइम्स when there are so many elements just probably maybe unintentionally trying to silence that which is within us. It's not about the brand, it's not about which brand of keyboard I play or which brand of a mixer I use or what speakers I use. I have done, मैंने जो अपना काम किया है in the most simplest of circumstances, कभी travel करते हुए, कभी किसी होटल रूम में रिकॉर्ड किया है, and I've recorded all my singers, I've recorded Arijit, I've recorded मोहम्मद इरफान, recorded शिल्पा राव. हमने बहुत ही नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में हमने जो काम किया है वो इतिहास का हिस्सा बन गया. नॉट बिकॉज ऑफ व्हाट वाज नॉट बिकॉज ऑफ द टेक्निक विच वाज रिप्रेजेंटिंग अस, बट बिकॉज ऑफ द कंटेंट दैट वाज देयर which was put within us. So I'd like to sum up by saying this only, that it's you. मेरा जो गाना है, अगर हम तुम ही हो की बात करें, आई प्रोफेटिकली से तुम ही हो, मतलब आप ही हो. यू आर द वन हु कैन मेक अ डिफरेंस. इट डजंट मैटर, एवरीवन नीड नॉट वेयर ब्रांडेड क्लोथ्स. Everyone need not be fond of wearing very fancy footwear. That's all secondary. I'm not against it. That's all secondary. But the actual brand is you yourself. That's what needs to be worked upon. That's what needs space to shine. जब आप खुद आपकी सोच जब ब्रांड बन जाएगी, तो दुनिया के सारे ब्रांड्स आपके पीछे आएंगे. So don't let that get lost. वरना दुनिया क्या करेगी? They'll make us dependent on external factors. कि अगर सही कीबोर्ड नहीं मिला, अगर सही स्पीकर नहीं मिला, अगर सही कपड़े नहीं मिलेंगे तो क्या हम सुंदर नहीं लगेंगे? जो व्यक्ति जानता है कि वो सुंदर है ना, वो चप्पल पहन के भी निकलता है तो भी सुंदर ही नजर आता है. सो दैट्स व्हाट मेक्स यू यूनिक, दैट्स व्हाट मेक्स ऑल ऑफ अस यूनिक.
the thought process that we have, uski bahut value hai. You know, instead of people asking us today, I would encourage our generation today not to ask you what are you wearing. That is secondary. Maybe the question should be what are you thinking. प्रश्न ये होना चाहिए कि आज आप क्या सोच रहे हो. Do you have a new thought? You know, a thought की जो value होती है, हम जब गाना करते हैं, when a director comes to me, when the lyricist is with me, the value is for the thought. तुम ही हो जिंदगी अब तुम ही हो, या दिल संभल जा जरा फिर मोहब्बत करने चला है तू, या तुझे कितना चाहने लगे हम, तेरे साथ हो जाएंगे ख़त्म, तुझे कितना चाहने लगे हम. It's the value of one thought. And from that one thought, an entire song can be produced, an entire soundtrack can be produced, and it can impact lives all over the world. I know stories where people have actually reconciled listening to my songs. There was a couple heading for divorce, and they just happened to hear a song of mine called Kuch Is Tarah, sung by Atif again. और वो गाना सुनने की वजह से they turned back and they decided to give their marriage another chance. So that is what the value of one thought can be, which can come from within you. It can come on a piece of paper. It could be anything. Don't lose that voice within you. Don't lose that passion within you. And everything else is only to make it better. But the most valuable thing about you is you. So I have come all the way from Mumbai. I'm standing on the stage to say just 3 words to you, and that is Tum Hi Ho. Thank you.